Good morning, everyone. Good morning, sir. Yeah. Good morning, sir. It's a done question. Good morning. Morning. Done. Morning, sir. Ania, beta. Yes, you want to say something? Sir, I'm just saying I've done. सारा क्या Sir, कह part रही 3 हो? of सारा न्यूज़पेपर पढ़ रही हो? So कुछ नहीं सर, that is memory chart of mathematics. अरे वाह, क्या बात है। सब कुछ थे वो याद नहीं आ रहे थे। ओह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Second part. Okay. I am doing the second part for you all on the board because इसमें दोनों sorry the I three have sides which are 10. given it will not make a right triangle. So A side Yes. is 9 centimeters. Side B is 12 centimeters and side C is given how much? 16 centimeters. ठीक है, ये तीनों sides given है. So first we find C square यानी कि 16 square यानी कि 256. A square plus B square 9 square plus 12 square 81 plus Sir, again I'm 144. not able to see you. The sum is 225. Writing. Rejoin the meeting. C square. Now the very Sania off कर लो अपना वीडियो. आप वीडियो ऑफ कर दीजिए. Okay, sir. Everyone others please start a video. C Sir, square. whenever I'm opening it, in the previous, your voice was cracking. So C square is not equal to A square plus B square. In this case, we can see एक आ रहा है 256 और एक आ रहा है 225. Not equal, unequal आ गए, प्रॉब्लम हो गई. So अब बोलेंगे Pythagoras theorem not verified, not satisfied. Since Pythagoras theorem is not satisfied, therefore it is not a right triangle. The triangle is not a right triangle. Okay, fine. Have you all done the third part also? Sir, Yes, just sir. The doing. third part, the triangle is a right triangle. In the third part you will get a right triangle again. थर्ड वाले में फिर से राइट ट्राइंगल आ जाएगा. ओके, मे वी स्टार्ट क्वेश्चन 6 नाउ. Yes, sir. Yes. चलिए क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं. तो इन क्वेश्चन 6 जस्ट अ मिनट. Yeah. In question number 6, in a right triangle ABC, the length of its legs are 6 and 4.5. Find the length of the hypotenuse. ठीक है, एक है 6, एक है 4.5. हाइपोटेन्यूज निकालनी है. क्वेश्चन 6 वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. बट इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, बस इतना डिफरेंस है दैट यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका डेसिमल में आएगा. आपको एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है. बस वही सिखाने के लिए मुझे ये क्वेश्चन कराना पड़ेगा. 6 सेंटीमीटर्स 4.5 सेंटीमीटर्स एंड द हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग, उसको x मान लिया. यही फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज. इट इज अ राइट ट्राइंगल. एंगल B you can see that it is a 90 degrees.
So B के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Pythagoras theorem. Okay. Okay, so hypotenuse is x square equal to p square यानी कि 6 square, b square यानी कि 4.5 square. So x square equals to 36. नोट मत करो यार, बोर्ड पे देखो भी, बाद में नोट करना. 4.5 square is 20.25. x square equal to 36 plus 20.25. 4.5 का स्क्वायर 20.25 होता है. हाँ जी. 15.75. आपकी बात सही नहीं आ रही. कौन? अभिनव. 15.75. सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. Sir, his voice is coming slow. 56.25 ऐड करके we get 56.25. Now अब ये तो डेसिमल में आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट मतलब 56.25 कौन से नंबर का स्क्वायर है ये फाइंड करना है. सेम मेथड है बट डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. 56.5625 अपॉन 100. कैन वी राइट इट लाइक दिस? डेसिमल उड़ा दिया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में 100 लगा दिया. Yes, sir. 5625 upon 100. Now separately do the prime factors of numerator and denominator. कैसे? 5625 के prime factors 3 से डिवाइड करेंगे. 1, 26, 8, 22, 7, 5. Again divide by 3. 6, 2, 5. 625. अब 6 3 से डिवाइड नहीं होगा. Now you can divide by 5. 125, 25, 5, 1. 5, 5, 5. So we can see that 3 का एक पेयर, 5 के दो पेयर बनते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर. ओके. सो x स्क्वायर क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर इंटू 5 के दो पेयर हैं तो 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर दो बार लिखेंगे 5 को. ठीक है. 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर बिकॉज वी हैव 5 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स है तो दो बार 5 स्क्वायर लिखेंगे. ओके. ऐसे ही सिमिलरली यू विल डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आल्सो. 100 के करके दिखाऊं या डायरेक्ट लिख दूं? मैं डायरेक्ट लिख दूं. 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 100 के प्राइम फैक्टर्स हो गए. ओके. अब देखो सारे नंबर जो भी दिख रहे हैं आपको आरएचएस में सबके ऊपर स्क्वायर लगा है सबके ऊपर स्क्वायर. ऑटोमेटिकली स्क्वायर आएगा सबके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस में. ओके. तो सब पे स्क्वायर लगा है. वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5 होल स्क्वायर. होल में स्क्वायर लगा दिया. कोई डाउट है? LHS RHS दोनों जगह होल में स्क्वायर आ गया. यू कैन हटाओ द स्क्वायर. So 3 into 5 into 5 is 75. So what did you say? You can hटाओ the square? Yes, You बेटा can ये हटाओ. थोड़ी Yes. हाइप है. Remove the square. मेरी इंग्लिश So थोड़ी nice. हाइप है. So we can हटाओ. We have removed the square. So 75 upon 10 बचा ये. 75 upon 10 बचपन से हमको पता है कितना होता है 7.5 सेंटीमीटर. क्लियर? Sir, do this question small. तो बहुत लेंदी है, छोटा कर देते हैं. फाइन, और छोटा कर दें. नो सर. सर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा. नहीं अब ठीक है. तो वेरी इजी स्टेप्स. बस डेसिमल नंबर को सारा प्रोसेस बस सेम है. डेसिमल नंबर को बस आपने बस फ्रैक्शन में चेंज करा है एक बार. उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स करके होल में स्क्वायर लगा दिया. स्क्वायर आने के बाद हटा देंगे दोनों साइड से.
एंड अब क्या बचेगा 75/10 विच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर्स। ओके, मैंने जान के 5 से 5 कट नहीं किया, आपके दिमाग में शायद ऐसा आया होगा कि 5 से 5 कट क्यों नहीं किया सर, में आया ऐसा दिमाग में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जान के नहीं करा है, बिकॉज अगर मैं 5 कट कर देता तो डिनोमिनेटर में 10 नहीं आता, 10 से डिवाइड करना ज्यादा इजी होता है, आंसर तब भी आ जाता बट थोड़ा सा फिर डिवीजन करना पड़ता मुझे डेसिमल में, तो आंसर आता है। बट 10 से डिवाइड करने के लिए डायरेक्टली वी कैन राइट आंसर 75/10 इक्वल टू 7.5, इसलिए चालाक, बहुत चालाक। अपनी तारीफ में कभी कुछ करता नहीं हूँ। No, sir, never. ना, कभी। सर नेवर। वो सर आप नहीं करते हैं, कभी कभार आपकी टंग स्लिप हो जाती है। हाँ होता है ऐसा कभी, नहीं, हाँ नहीं। Okay, have you all understood the question? डेसिमल नंबर Yes, में sir. अगर स्क्वायर रूट निकालना होगा तो कोई Yes, डर तो sir. नहीं लगेगा, इजी, बहुत इजी काम है, कोई डरने वाली No, बात तो sir. नहीं है। No, sir. नहीं You लगेगा have सर a डर। whole chapter based on this in class 8, squares and square roots, जो मैं अभी मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत यूज कर रहा हूँ। You have a whole chapter based on this, squares and square roots in class 8. Okay. Oh, sorry. So, question number 8. It सर is एक an चीज पूछूं? हाँ जी। सर आप हमें क्यों बड़ा बनवा देते हैं और खुद नहीं बनते हैं? सर उस क्या? दिन जब आप स्कूल के बारे में बोल रहे थे सर कि when I said you the sir that why winter vacations are not why we are not getting the holidays, so sir when you are जब आप बोल रहे थे तो आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और सर when I am speaking so you started recording. नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सर वो तो वर्ड रही थी। कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। Question 8 is it is an MCQ but we have to do this in the copy only, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। So yeah, draw a triangle बना हुआ है क्वेश्चन में, ABC, we have to do this in the copy। MCQ है, 3 options, 1 option is correct, 2 are wrong। Okay, I will explain what to do। ये एक ट्राइंगल है, you have to tell for this triangle which of the following option is correct। The Look at the options। third one maybe. Huh? Look at the options। Third one is the right answer। Look at the options। BC square equal to AB हाँ square plus AC square। हाँ, तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में सर एंगल फर्स्ट A ऑफ is ऑल 90। कोई भी ऑप्शन पहली बात तो तभी सही होगा जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर दिस इज अ राइट ट्राइंगल और नॉट। सेकंड थिंग, अगर ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्रीज है। अगर कोई एंगल 90 का है इसमें तो हमें उससे पता चल जाएगा कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है। So I think और जो, हाँ you are right, absolutely right। So angle, we will use angle sum property to show that angle A is 90। Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees। This is angle sum property। So angle A plus B 35, C 55 equals to 180 degrees। एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 35 और 55 को ऐड करके 90 आ गया। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज।
एंगल ए इज 90. सो इज दिस अ राइट ट्राइंगल? अब मैं यहाँ पर ये ऐसे बना सकता हूँ. ये कब लगाते हैं? ये वाला जो ऐसे लगाते हैं एंगल की जगह. When the angle is 90 degrees, when it is a right triangle, right angle. So this is a right triangle. Angle A is 90. Which side is the hypotenuse? The B and C. BC. Hypotenuse. So BC is hypotenuse in this. Therefore, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? BC square equals to AB square plus AC square is the right option. Third option. Okay, fine. Understood the whole question, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Ninth one. Ninth. May we start? Have you all done it? Sir, just 1 minute. Yes, Sir, sir. just So just one. sir done. Done. Question number 9. Question 9 कह रहा है you Sorry, can आपने see. समझा? हाँ, ऐसा कुछ सिमिलर मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ. 15 मीटर लॉन्ग. हाँ, लगभग सेम ही है. यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे विंडो की जो हाइट है वो गिवन है ग्राउंड से. हमें लैडर का फुट बताना है, बिल्डिंग से कितना दूर है. तो ये थोड़ा सा उल्टा है. A 15 meter long ladder is placed against a wall to reach a window 12 meter high. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. Very nice. तो जब हम लैडर वॉल पे लगाएंगे तो लैडर और वॉल और ग्राउंड तीनों चीजें मिलकर के क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म अ राइट ट्राइंगल. वेरी नाइस. मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूँ. फिगर बुक में भी गिवन है आपको. ओके. हम लोग अपने से करें. Yes, बिल्कुल. You have to do it yourself. ये ABC. Let's name the triangle as ABC. The length of the ladder is given. This is your ladder. 15 meter long ladder. A point पे window है. Window is at a height of 12 meters from the ground. Window की height ground से 12 meter है. BC is the ground. ठीक है, ये ground है. अब आपको B जो point है that is the foot of the wall and C is the foot of the ladder. आपको BC डिस्टेंस x ये फाइंड करना है. कितना है? फाइंड BC. यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड BC. ठीक है, स्टार्ट डूइंग. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. कीप योर वीडियोस ऑन. Sir, it's similar to the first one. Yes, Yes, sir. similar. Sir done. Sir done. Don't forget कि hypotenuse is always on one side and the other two sides are always on the other side of the equation. ऐसा मत करना कि हाइपोटेन्यूज के साथ एक साइड और लेग के साथ उन दोनों को ऐड कर दिया, पता लगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर पे. यस, करेक्ट. वेरी गुड. Yes, sir. The answer is 9. एक लड़की है जिसका नाम है वृंदा.
कि आज हैपेंड लैपटॉप आज उसका सही से काम नहीं कर रहा है, मोबाइल फोन। सर लैपटॉप बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा है ढंग से। So Vrinda does to every teacher that Rasik sir says that Nishu ने वृंदा को बिगाड़ दिया। दोनों ने एक दूसरे को बिगाड़ा है, दोनों ने एक दूसरे का नाम लिखा पेंसिल से कॉपी पर और बिगाड़ दिया। सेम सर। सर इरेज कर दिया। वेरी गुड सारा, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा राइट डाउन द यूनिट सारा, 9 meters। यस वेरी नाइस। ठीक है 3। बाकी बच्चे शो मी योर सॉल्यूशन। सर जस्ट डूइंग इट। सर वी हैव टू सेंड इन द चैट बॉक्स और द ग्रुप। Send it in the group. Send it in the group. Take a photo, send it in the group. Sara has sent, Sania has sent. सानिया ने पिछला क्वेश्चन सेंड किया था, सॉरी नॉट दिस वन। Yes sir, कल मैं करूँ। ओके सो आगे बढ़े बेटा। यस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। 5 मीटर लॉन्ग लैडर, बिल्कुल सेम टाइप है, बस नंबर्स डेसिमल के हैं यहाँ पे, मैं नहीं करूंगा। 5 मीटर लॉन्ग लैडर आप लोग करेंगे। मतलब 5 मीटर लॉन्ग लैडर व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस रीचेस अ हाइट ऑफ 4.8 मीटर। सर एटलीस्ट डायग्राम तो बना दीजिए। हाँ हाँ Sir I know diagram। 5 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर की लेंथ दी हुई है, देखो लैडर ऐसे टेढ़े रखी होती है वॉल के और ग्राउंड के बीच में। 5 मीटर लॉन्ग लैडर when set against the wall of a house reaches a height of, जो हाइट विंडो मतलब जिस हाइट तक लेडर पहुंच रही है ग्राउंड से, दैट इज 4.8 मीटर्स। ये जो हाइट है दिस इज 4.8। ठीक है। हाउ फार इज द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, अगेन बिल्कुल सेम चीज फाइंड करनी है। फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल एक्स। शुरू हो जाओ, ए बी सी। फाइंड आउट एक्स in decimal, if it is coming in decimal, I think it will come in decimal।
Yes, done. Sir, just a second. Sir, just No, sir, sending just on. a second. Sir, I have done. Sir, I have sent it. Sir, it's 1.4 meters. 1.4 meters. Let me see those who have sent the answer in the group. Very nice, beta. Very nice. Very nice. Very good. Absolutely right. I hope you all are writing the reason also in the bracket, whatever the reason, and drawing the figure. If you draw the figure, it gives you a clarity in mind. See what is given, what to do. Sir, So drawing a figure is also very important. ये मैं आपको अभी से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हायर क्लासेस में इट विल बी वेरी 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 यूजफुल फिगर्स. ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है, ड्रॉ इट योरसेल्फ एंड देन डू द क्वेश्चन. खाली दिमाग में सोच के नहीं करना चाहिए. ओके यस. sir, please check my answer. Zehra, finally x square equals to 9 square, but इसके बाद एक स्टेप और है, x equal to 9 मीटर. Okay, ये sir. आपका पिछला वाला है. ओके, देन आफ्टर दिस डू द 10th वन. Zehra. Okay, sir. Just नेक्स्ट करें. Sir, यस. sir, in this question, like 1.96, my answer is came, and then like I have written upon 100, and so sir, when I like ऐसे मुझसे निकाला, so sir 3 times 2 आ रहा है. Sir, can you? Not Sir, possible. can you? I'm doing it. Don't worry. Hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, Pythagoras theorem. Check your answer, all of you. So hypotenuse is 5. 5 square equals to 4.8 square plus b square. What is 4.8 square? b square. b हमें x मान लेते हैं. b x माना हुआ है. 23.04. 5 square is 25. 23.04. Absolutely right. So x square equals to 25 minus 23.04. When you subtract, you get x square equals to 1.96. That means x square equals to 196 upon 100. अब आइए मैं 196 के प्राइम फैक्टर्स आपको करके दिखाता हूँ. सानिया को कुछ कंफ्यूजन है. 7 square. Absolutely right. Now 196 divided by 2 is 98. 98 divided by 2 is 49. Divided by 7. 7 again 7 1 और 100 के सबको पहले से ही पता. So that only I 50 25 5 1 sir 2 square multiply 2 5 5 5. So this is 2 square into 7 square upon 2 square into 5 square. 5 square.
So x square is equals to 2 into 7 upon 2 into 5 whole square. होल में लग गया स्क्वायर. Therefore x equals to, अब स्क्वायर हम से स्क्वायर कैंसिल. दोनों जगह होल में स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल. So this becomes 2 into 7 14 upon 2 into 5 10. So for 1.4 meters. मीटर है यूनिट, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है. So this only I did mistakes are in, like I thought I've written 3 table, like 3 3s are 9, so I've written 3, so by mistake. कोई This बात only. नहीं. Understood? Question 11. Question 11 पे आ जाए. You all have done? Check your answer. 11th. Maybe start I 11th. have done like this only. Very good. Yes. तो पूरा ऐसा ही करा. बहुत अच्छे बेटा. Very nice. Question 11. A tree is broken by the wind. A tree is broken by the wind but does not separate. अलग नहीं हो पाया. मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री यहाँ पर ग्राउंड में बीच में से कट गया. विंड आई होगी, विंड से कभी कभी देखा आपने पेड़ टूट जाते हैं. सो ये ट्री जो है वो विंड की वजह से इट ब्रोक फ्रॉम समवेयर. एंड देन व्हाट हैपेंड, ये ट्री का जो ये वाला पार्ट है ये ग्राउंड है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ट्री का ये ग्राउंड पर ऐसे नीचे की तरफ आ गया, लाइक दिस, टपक गया नीचे. ओके. अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या क्या दे रखा है. इफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड. जिस पॉइंट से ये ब्रेक हुआ, कौन से पॉइंट से ब्रेक हुआ, लेट दिस पॉइंट बी बी, फुट ऑफ द ट्री मान लेते हैं ए. तो जिस पॉइंट से ये ब्रेक हुआ है दैट पॉइंट इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड. सो दैट मींस ए बी इज 9. इतना क्लियर है? ओके. Yes, sir. And its top touches the ground at a distance of 12 meter from its foot. अब इसका जो टॉप है ट्री का, जो पॉइंट P था, ओरिजिनली पॉइंट P था, टॉप P था ना पहले, अब वो ग्राउंड पर आ गया है. मान लीजिए वो पॉइंट C पे जाके गिर गया. इसका टॉप, जो ट्री का जो हेड है वो नीचे आ जाएगा ना, पॉइंट C पे आ गया. एम आई राइट? तो जो ट्री का जो टॉप है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द फुट. ट्री के फुट से ये जो डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर, जो टॉप है ट्री. हमें बताना है ट्री की टोटल हाइट कितनी थी ब्रेक होने से पहले. ट्री की टोटल हाइट कितनी थी? ओके. सो दैट मींस वी विल फर्स्ट फाइंड आउट बीसी. पीसी निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. मान लेते हैं x है, निकाल लेंगे. कैन यू ऑल फाइंड आउट बीसी? निकल जाएगी. अभी नहीं Yes, करना, sir. पहले मेरी बात सुन लो पूरी. वी विल फाइंड आउट बीसी. मिल गई. अब 9 मीटर वाला पार्ट ये है, और ये अगर दोबारा से ट्री को मैं खड़ा कर देता हूँ तो ये x जो है वो ऐड हो जाएगा 9 में. x के जो भी आएगा, आपको मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, 15 आएगा, ठीक है. x विल बी 15. तो 9 में आप 15 ऐड कर देंगे तभी तो हमको टोटल हाइट ट्री की पता चलेगी. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 24 मीटर्स. अब आपको ये पूरा काम करके दिखाना है. समझ गए? मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द होल क्वेश्चन. स्टार्ट डूइंग. Sir, I have a doubt. यस. Sir, like, sir, why we have written that point is P at the top of the tree? कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि P लिखें आप. P Q R S T U V W जो भी लिखना है, S भी लिख सकते हैं. इसको सारा Sir, सारा R को sir. हाँ, S लिखना ज्यादा अच्छा है सारा, बिकॉज पहले टूटने से पहले तो ट्री पूरा सारा ही था ना, अब टूटने के बाद आधा हो गया, पहले सारा था. Yes, sir. N sir, S से सारा, S से sir. हाँ हाँ, ये भी बात ठीक है.
Do it. The next period I have in 5th C. So, fifth Sir, C. we are going to be the luckiest class. Sorry? Sir, fifth class is going to be the luckiest. Oh,